स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 7 इंग्लिश प्रैक्टिस के चैप्टर 3 द कंपाउंड सेंटेंस का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले इंग्लिश प्रैक्टिस के 2 चैप्टर्स पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इंग्लिश लिटरेचर पे वीडियो अपलोड है। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, वर्कशीट 1, रीड दिस सेंटेंसेस taken from unit people at work. From my English reader, put a tick against those sentences that contain one subject and one predicate. देखिए स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट से मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। वो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो किसी वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। इन द सेंटेंसेस गिवन अबव, सेंटेंस 2 and 4 consist of 2 parts. Second, I have sold them all my life. Second, I still make mistakes. Fourth, I sold the ring for the right price. I made £2 on the picture. In sentence 2, the 2 parts are joined by the conjunction but. In sentence 4, the 2 parts are joined by the conjunction and. स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। Each of the clauses contain a subject and a predicate and makes complete sense, so it is a simple sentence. Remember, a compound sentence is made up of 2 or more clauses which are interdependent of each other. They are of the same order or rank and can stand on their own. They are coordinate clauses. स्टूडेंट्स, ये रिमेंबर को आप लोगों को याद करते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्कशीट 2, वर्क विथ योर पार्टनर, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट एस फॉर सिंपल सेंटेंसेस एंड सी एस फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस। हम लोगों को इस जो भी सेंटेंस हमारे पास दिए हुए हैं, यदि वो सिंपल सेंटेंस है तो हमें वहाँ पर एस लिखना है, और यदि वो कंपाउंड सेंटेंस है तो हम लोगों को वहाँ पर सी एस लिखना है। सबसे पहला, इट्स गेटिंग लेट, सिंपल है, सिंपल हम लोग एस लिख देंगे। सेकेंड, द स्टूडेंट्स वॉन द मैच एंड कोच वॉज हैप्पी, एंड द कोच वॉज हैप्पी, कंपाउंड सेंटेंस। Third, should I write a letter or should I make a phone call? That is a beautiful picture. My parents are away to Delhi, but they will be back on Monday. Compound sentence. Sixth, she was nervous but she faced the audience. Compound sentence. Is it stolen or have you lost it? Compound sentence. Eight, the weather was warm but it was rather humid. Compound sentence. Ninth, my computer is out of order. Simple sentence. 10th, the girl was happy but she missed her mother. Compound sentence. Work in pairs, find out a few things about your partner. Get him/her to answer a few questions in order to know more about him/her. A few questions and answers have been given as example. Build up the rest yourself.
turns to ask questions and ask your partner to write down the answers for each. Use the conjunction given in brackets to frame your answers. Use the same conjunction for your own sentences also. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास. अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं. यू, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड अ लॉट ऑफ मनी इन द पार्क? A partner, I would keep some and give the rest to the police. You, what do you like about your school? What do you dislike about it? But का यूज करना है इसमें हमें. Partner, I like the teacher of the school, but I do not like the indisciplined students of the school. Students. Next, what will you do if you win a cash prize worth rupees 1 lakh? I will buy a laptop or deposit it in the bank. स्टूडेंट, इसके आगे के क्वेश्चंस को आप लोग खुद फ्रेम कीजिएगा, अपने पार्टनर के हिसाब से आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, वर्कशीट 4 देखते हैं हम लोग. गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 इन द बॉक्सेस गिवन बिलो. राइट द नेम्स ऑफ एट लीस्ट 3 प्रोफेशनल्स. राइट डाउन थिंग्स दे हैव टू डू इफ दे वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर फील्ड. यूज एंड, बट एंड और. वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे एथलीट के बारे में है. एन एथलीट ही कैन विन रेसेस बट ही हैज टू प्रैक्टिस हार्ड. ही मस्ट ईट वेल एंड गेट प्रॉपर स्लीप. ही कैन ज्वाइन अ जिम टू कीप फिट और एक्सरसाइज ऑन द फील्ड ऑन हिज ओन. ओके, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं एक क्रिकेटर के बारे में. मैंने लिखा हुआ है एक क्रिकेटर. ही कैन प्ले फॉर इंडिया बट ही हैज़ टू गेट सिलेक्टेड फर्स्ट. इंडिया की तरफ से खेलने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट होना पड़ेगा. सेकेंड, ही मस्ट प्रैक्टिस हार्ड एंड गेट प्रॉपर ट्रेनिंग. He can join a gym to keep fit or exercise mind under the guidance of a physical trainer. स्टूडेंट्स, आगे के दो जो है 2 प्रोफेशनल्स आप लोग खुद कीजिएगा और उसे अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो लोग आप खुद लिख लीजिएगा. हम वर्कशीट 4 दिखा रहे हैं. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड ट्राई टू गेस व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाट ईच पर्सन वांट्स. राइट अ सेंटेंस कनेक्टिंग द 2 पिक्चर्स यूजिंग एंड, बट और. वन हैज़ डन फॉर यू. इस पिक्चर्स को देखना है और सिचुएशन को गेस करना है कि कौन सा पर्सन क्या चाह रहा है. ओके, और हमें इस पिक्चर्स को कनेक्ट करना है तो एंड, बट और के यूज से करना है. पिक्चर्स देखिए पहले यहाँ पे आप लोग. ये है पिक्चर्स.
चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला आपके पास दिया हुआ है सी वांट्स टू गो होम बाय बस बट देयर इज नो बस टू हर होम। सेकंड, ही वांट्स टू ड्रिंक जूस बट द जूस शॉप इज क्लोज्ड। देखिए थर्ड, the day was too hot and he wants to swim in the swimming pool. He wants to buy clothes but he has no money. Fifth, he wants to play football but he has not complete his homework. Hasn't complete his homework. आप लोग पूरा एक साथ देख लीजिए। Six, read the following news, underline the compound sentences. ये न्यूज़ है और इसमें हम लोगों को कंपाउंड सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है। British drivers and mobile phones. British drivers are the safest and most polite in Europe. ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। फिर जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा कंपाउंड सेंटेंस। Just 1 in 10 London drivers do not stop at red lights and 9 in 10 obey parking laws. They are no doubt very helpful but may prove to be a problem on the road. The traffic police have been working hard to find a solution but have found little success. It seems so impossible to convince driver not to carry or use mobiles while driving. तो यही सब थे कंपाउंड सेंटेंसेस, आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। Worksheet 7. Get into groups of 3. Read the following headings. Select any one of them and discuss it among yourself. Homework should be abolished. All schools should have a 5-day week. Children should be admitted only to neighborhood school and ideal schools student. ओके इसमें हम लोगों को एक आर्टिकल लिखना है। जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिएगा आप अपने सिलेक्ट कीजिए, किस टॉपिक पे आप लोगों को आर्टिकल लिखना है। ओके और कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस के मिक्सचर्स को यूज़ करके आप लोगों को एक आर्टिकल यहाँ पर लिख देना है। ओके तो इस 4 टॉपिक्स में आप लोग किसी भी टॉपिक्स पे लिख सकते हैं, तो ये आप लोग खुद कर दीजिएगा। ओके हम लोग वर्कशीट 8 देखते हैं। पुट कॉमास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट किया हुआ है, मैं सेकेंड सबको बता रहा हूँ। मनिका वेंट टू सी फिल्म एंड शिल्पा वेंट टू प्ले बास्केटबॉल। फिल्म के बाद कॉमा है स्टूडेंट्स। थर्ड, हेल्प मी क्लीन अप द बेडरूम और आई विल टेल मॉम यू मेड द मेस। मॉम के बाद और इधर बेडरूम के बाद। Fourth, Radhika loves computer, and she has got a job as computer artist. Fifth, the coach told me
to practice every day, comma, he would drop me from the team. Sixth, if your friend calls, should I give him your message or should I ask him to come again? कॉल्स के बाद और मैसेज के बाद लोग देख लीजिए। स्टूडेंट्स डू इट योरसेल्फ, आप लोग खुद कर लीजिए। ओके, तो मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।